أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ آج ہم بڑی ہی خوبصورت بات کریں گے کہ آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لفظ یعنی اسم اللہ ذات کہہ کر سب سے پہلے کس نے پکارا، یعنی اللہ کو اللہ کا نام کس نے دیا۔ اور ہمارے پاک نبی خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کو سب سے پہلے محمد کس نے فرمایا۔ بڑی ہی خوبصورت اور معرفت بھری بات ہے جو اولیاء نے اپنے تصوف سے بھری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور خصوصاً ہمارے جو مرشد کامل ہیں حضرت سخی سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنا فضات عین یاہو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتابوں میں نور الہدا شریف میں، اور ہمارے جو دادا مرشد ہیں صاحب عرفان حضرت فقیر نور محمد سروری قادری نے، انہوں نے اپنی کتاب عرفان شریف میں اور دیگر کتابوں میں یہ واقعہ درج ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اور رسول پاک کو اسم محمد کا اسم سب سے پہلے کس نے دیا۔ تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے مقام احدیت کی، سیر کرتے ہیں احدیت کی، جسے وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ احدیت کس کو کہتے ہیں سن لیں پہلے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بھی چیز کو تخلیق نہ فرمایا تھا، اور کنت کنزن مخفی جا کے اللہ پردوں میں تھا، ابھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ اللہ ہے، اور اللہ نے اپنے آپ کو کسی پر ظاہر بھی نہیں فرمایا تھا کہ میں کائنات کا یا پوری کائنات کا یا ہر چیز کا میں خالق و مالک و رازق ہوں، یعنی اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ تمام صفات اس میں تھی پر ظاہر نہیں تھی، ذات تھی پر پوشیدہ تھی۔ کنت کنزن مخفی جا کے پردوں میں وہ خزانہ چھپا ہوا تھا، کسی کو معلوم نہ تھا۔ اللہ مخلوق نہیں تھی، اللہ تھا، اللہ کہنے والا کوئی نہ تھا، معبود تھا، عابد کوئی نہ تھا، اکیلا تھا، تنہائی کی ڈولی میں تھا۔ اور ازلی و ابد کی بات کر رہا ہوں جب خدا احدیت کے پردوں میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا۔ تو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے رسالہ روحی شریف میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے جب تنہائی کی ڈولی سے نکل کر مقام احدیت سے اللہ تعالیٰ جب حقیقت محمدی میں شان نزول فرماتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جب اپنے ہی تنہائی کی ڈولی سے نکل کر اپنے ہی نور سے ایک نور کو جدا کیا، کیونکہ غیر کوئی موجود نہ تھا، پوری کائنات میں خدا ہی کا نور سمایا ہوا تھا۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ زمینوں اور آسمانوں کی روشنی اور نور ہے، غیر کی کوئی گنجائش نہیں تھی، یعنی شرک کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ غیب کوئی وہ ذاتی واسعہ کرسیو السماوات والارض، زمین و آسمان اس کی کرسی یعنی اس کا علم نے اس کو اپنے احاطے میں لیا ہوا تھا، وہ اپنے نور کے ساتھ ہر جگہ پر تھا، اب اپنے ہی نور سے نور لیا۔ پھر میں بتا دوں غیر نہیں تھا، نہیں تو وہاں سے کوئی چیز لے لی جاتی، اگر لے لی جاتی تو غیر کہلواتی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ جب اللہ تھا کوئی نہ تھا، سب سے پہلے کس چیز کو بنایا گیا؟ تو میرے اور آپ کے حبیب فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا، یعنی نور خدا سے نور محمد تخلیق ہوا۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث نبوی ہے، میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں اللہ کے نور سے ہوں، اور میرے نور سے ساری مخلوقاتیں ہیں، یعنی پوری کائنات بعد میں میرے نور سے ہے۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے حدیثوں میں، اور پتہ یہ چلتا ہے عرفا وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس چیز کو عین دیکھا ہو، عین اس چیز کا تجربہ کیا ہو۔ اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء اللہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جب تنہائی کی اس ڈولی سے اس احدیت سے نکلا، اور اللہ نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو جدا کیا، اور پھر اس نور کو دیکھا کہ کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت نور ہے، کیسا دل ربا ہے، دل نشیں ہے، دل کو بھانے والا ہے،
दिल को प्यारा लगने वाला है। अल्लाह ताला ने उस नूर को देखा तो उस नूर को देखकर कहते हैं ये कितना तारीफ किया गया है। हम इसको अरबी में कहते हैं ये कितना मोहम्मद है। तो पहला नाम यानी मेरे और आपके नबी को नाम मोहम्मद अल्लाह ताला ने दिया। अल्लाह ताला ने इसमें मोहम्मद नाम यानी ये कितना तारीफ किया गया है, ये कितना मीठा लगता है, ये कितना दिल रुबा दिल नशी लगता है, तो उसका नाम रखा मोहम्मद। आज पूरे जो तसव्वुफ को मानने वाले हैं, खसूसन सुल्तानुल आरफीन जो रूए ज़मीन के आरफीन के बादशाह हैं, वो हमें बार बार यही बात कहते हैं अपनी किताबों में, ऐ लोगो इसमें मोहम्मद अपने सीनों पर नक्श करो, इसलिए कि ये वो इसम है जो सबसे पहले कुदरत की उस पाक जुबान से निकला था, यानी जो अल्लाह ने सबसे पहला जुमला फरमाया था उसका नाम है मोहम्मद। यानी कुदरत की जुबान से पहला हरफ पहला लफ्ज जो निकला, खुद सोचे वो किस कदर आलीशान होगा। और वो लफ्ज खुदा के यानी अल्लाह ताला ने वो उस नूर के अंदर जो छुपी पावरें थी, ताकतें थी, खूबसूरतियाँ थी, दिल नशीनियाँ थी, दिल रुबा अदाएँ थी, वो उसमें जो खूबसूरती थी उसको देखकर अल्लाह ताला ने इसका नाम रखा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर हदीसों में किताबों में भी आता है कि अल्लाह ताला ने ये हमारे जो दादा मुर्शिद हैं हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह इरफान में लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने 76,000 साल नूरे मोहम्मद की ज़ियारत की। और सिर्फ ज़ियारत नहीं की यानी देखा ही नहीं है, बल्कि अल्लाह या मोहम्मद ए मोहम्मद, यानी वो खुद ही अपने नाम के साथ अपने उस नूर के साथ जिससे अल्लाह ताला को इश्क हुआ, मोहब्बत हुई, उसका नाम नूरे मोहम्मद रखा। उलमाए हक ने अपनी किताबों में लिखा 70,000 साल, हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद साहब ने लिखा 76,000, यानी जितना भी है कम और बेश 76 लगा लें 70 लगा लें, जितना भी है ये अल्लाह ताला को उसकी तादाद का इल्म है। तो अल्लाह ताला ने अपने उस इल्म के हिसाब से जो खुदा के मालूम है उतनी देर इसमें मोहम्मद नूरे मोहम्मद की ज़ियारत की और इसमें मोहम्मद को पुकारा और खुदा या मोहम्मद कहता रहा। अब जब अल्लाह ताला ने उसको पुकारा या मोहम्मद कहकर, ए मोहम्मद, तारीफ किए गए। अब नूरे मोहम्मद के लब हिले, वो खूबसूरत लब हिले और नूरे मोहम्मद भी बोला। अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ तो नूरे मोहम्मद ने जब कलाम किया तो हजूर के इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने हजूर को दिया था और वह मोहम्मद नाम रखा था। अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका नाम इसमें मोहम्मद रखा गया था, उस नूरे मोहम्मद ने कलाम अल्लाह ताला से किया, क्योंकि अल्लाह बार बार फरमा रहे थे या अल्लाह या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। अब अल्लाह बार बार कह रहा था या मोहम्मद। ये अल्लाह की सुन्नत है, याद रखें या मोहम्मद कहना। और ये भी औलिया ने लिखा है, अपनी उरफा सालिहीन ने अपनी किताबों में लिखा है, सुल्तान बाहू ने लिखा है कि अल्लाह ताला आज भी आसमानों पर या मोहम्मद ही फरमा रहा है। अल्लाह की एक ही आदत मुबारक है कि वो अपने महबूब का इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, वो आज भी अपने फरिश्तों के साथ उस पर दरूद व सलाम भेज रहा है, नाम लेकर या मोहम्मद कहकर। अब जनाब मोहम्मद का जब नाम अल्लाह ने लिया कि या मोहम्मद, अब लबे मुस्तफ़ा हिलते हैं, हजूर के लब हिले, कुदरत उस वो नूरे मोहम्मद के लब हिले। अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के उस हकीकी नूरे अज़ली व अबदी को जब देखा तो रसूल पाक के लब हिले तो फरमाया अल्लाह। ये नाम इसमें अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अल्लाह ताला को अता फरमाया। अल्लाह ने कहा या मोहम्मद, हजूर ने फरमाया या अल्लाह। फिर हजूर पाक ने कहना शुरू कर दिया या अल्लाह, ए अल्लाह। फिर अल्लाह ताला की आवाज आई या मोहम्मद, ए मेरे यार मोहम्मद। अब ये था असली और अबदी अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने जो इसमें मोहम्मद रखा, और मैं ये आपको बता दूं अल्लाह ताला की सबसे पहली जो कह ले अता है पूरी कायनात पर, सबसे पहली अता वो इसमें मोहम्मद है।
क्योंकि अल्लाह ने जो सबसे पहली चीज़ अता फरमाई वो इसमें मोहम्मद है, और उसी इसमें मोहम्मद से, नूर मोहम्मद से अल्लाह ताला को इश्क हो गया। और ये इतना अल्लाह ताला को वो प्यारा लगा कि अल्लाह के कुदरत के उस अंदर से आवाज़ आती है, कुदरत के कहले कलब से, जो अल्लाह की शान के शेजान है, तो इसका नाम मोहम्मद रखा जाए। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुदा के नूर का हिस्सा हैं, उन्होंने फिर फरमाया कि या अल्लाह, अब हजूर ने अल्लाह को इसमें अल्लाह ज़ात का नाम लेकर पुकारा, तो अल्लाह का नाम हुआ अल्लाह। ये अल्लाह का नाम अल्लाह ने अपने पर्दों में छुपा लिया। मोहम्मद का नाम अल्लाह ताला ने अपने असरार, अपने पाक खजानों में छुपा लिया। इसीलिए तो किसी नबी पर इसमें मोहम्मद नाम जाहिर नहीं किया, इसमें अहमद नाम जाहिर किया कि इसका नाम अहमद है। और इसमें अल्लाह ज़ात भी पिछले नबियों को नहीं दिया गया, उनको भी नहीं पता था कि अल्लाह, वो अपनी अपनी जुबानों में अल्लाह को पुकारते थे। यानी कि अल्लाह ताला ने किसी नबी को इब्रानी, यूनानी या उनकी जुबानों के नाम में अपना नाम बताया था। कोई खुदा को यानी कह ले यहोवा कहता था, कोई एल कहता था, कोई अल्लाह ताला को ईश्वर कहता था, कोई परमात्मा कहता था, कोई ओम कहता था, कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई रब कहता है। यानी अल्लाह ताला ने उनको अपने सिफाती नाम की तजल्ली उन पर फरमा दी थी, पर ज़ाती नाम अल्लाह ने मोहम्मद के सीने में छुपा दिया। और मोहम्मद का जो ज़ाती इसमें मोहम्मद अपने अल्लाह ताला ने कुन्तु कंज़न के ख़जाने में छुपा लिया था। अब ये 1,24,000 नबियों के ज़माने में ना इसमें अल्लाह ज़ात का किसी को पता था, ना किसी को इसमें मोहम्मद का पता था। इसमें मोहम्मद की वो पेशन गोई अहमद कहकर करते थे, अहमद के भी यही मैनी है, ठीक है, तो अहमद कहकर किया करते थे। लेकिन मोहम्मद नाम अल्लाह ने छुपाया हुआ था, क्योंकि अल्लाह के नाम पर भी नुक्ता नहीं है और मोहम्मद के नाम पर भी नुक्ता नहीं है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह को अल्लाह का नाम मोहम्मद ने दिया और मोहम्मद को मोहम्मद का नाम अल्लाह ने दिया। ये वो महबूब है कि जिसके जरिए से ये पूरी कायनात तख्लीक, जैसा कि हदीस शरीफ कुदसी में आता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए मेरे हबीब, मैं कुछ भी पैदा ना फरमाता। अल्लाह ताला का ये कहना कुछ भी, तो कुछ भी में ये पूरी कायनात, अर्ज़ो समा, ये कुरान मजीद, मक्का मदीना, ये जितना भी जहान है, ये नमाजें, हज, ज़कात जो हम पढ़कर इज्जत कमाते हैं, जन्नत कमाते हैं, जन्नत में जाने के बहाने बनाते हैं, तो ये सब कुछ किसकी वजह से है? एक नाम है मोहम्मद, एक हस्ती है मोहम्मद, जिसका इस्म है मोहम्मद। और मोहम्मद वो हस्ती है जिससे अल्लाह ताला को इश्क हुआ। हबीब, मैं कुछ भी पैदा ना करता अगर आपको पैदा ना करता। और यहां तक फरमाया, मैं अपना इसमें अल्लाह ज़ात भी जाहिर ना करता। ए मोहम्मद, अगर मैं आपका इसमें मोहम्मद को जाहिर करना ना होता, मैं अपना इसमें अल्लाह ज़ात भी छुपा लेता। गोया इसमें अल्लाह ज़ात को जाहिर करना है इसमें मोहम्मद ने, और इसमें मोहम्मद ने जाके लोगों को बताना है इसमें अल्लाह ज़ात के बारे में। यानी इसमें अल्लाह, यानी अल्लाह इसमें मोहम्मद यानी रसूल पाक को मशहूर करेगा और प्रोटोकॉल देगा, इज्जत देगा, शोहरत देगा, बुलंदियां देगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का तारुफ लोगों को करवाएंगे। हजूर पाक अल्लाह से मुतारिफ लोगों को करवाएंगे। हजूर पाक लोगों को इसमें अल्लाह ज़ात तक जाने का रास्ता समझाएंगे। हजूर पाक लोगों को इसमें अल्लाह ज़ात उनके कल्ब में लगाकर उनको वक़्त के औलिया बनाएंगे। तो मेरे भाइयों, याद रखें, आज समझ लें, जान लें, इसमें अल्लाह किसने रखा और इसमें मोहम्मद किसने रखा। ये अल्लाह ताला ने और उसके महबूब ने एक दूसरों के नाम रखे। उसके बाद अल्लाह ताला शान नज़ुल फरमाता, हकीकत मोहम्मदी में, मुकाम फिर वहदानियत में, हकीकत मोहम्मदी में, फिर अल्लाह ताला मुकाम अमसाल में, अफ़आल में, अशकाल में, अजसाम में, जिस्म में, इंसान में, ये अल्लाह ताला की तमाम तर वो जो शान नज़ुल है वो इंसान तक अल्लाह ताला की पहुंचती है। अल्लाह ताला ने कैसे वो शान नज़ुल अपना ही फरमाया, क्योंकि गैर मौजूद नहीं था। ये सारी चीज़ों खुदा ने खुद ही अपनी यानी कह लें अपने नूर से तख्लीक फरमाई। लेकिन वो मुकाम अहदियत जो इसमें अल्लाह ज़ात था उसको अल्लाह ताला ने कदीम रखा
اور जो इसमें अल्लाह ज़ात के बाद दुनिया में जो चीज़ें आई उसको अल्लाह ताला ने हादिस रखा। हादिस कहते हैं जो चीज़ वापस उसी में आए, कदीम कहते हैं जो बाकी रहे। यानी अल्लाह ताला ही में सारी चीज़ों ने गुम होना है। और सारी चीज़ों ने जितने भी ये मुकामात हम बताते हैं, मुकामे याहूत से लेकर मुकामे लाहूत, जबारूत, मलाकूत, लाहूत, याहूत, ये जितने भी नासूत यहाँ तक आते हैं, ये सारे जहान अल्लाह ताला इन सारे जहानों पर जगह शान नज़ूल करता है। फिर इसी से बंदे को दोबारा उसका कामल मुर्शद उठाता है आलम नासूत से, फिर आलम मलाकूत, जबारूत, लाहूत, मुकामे बाहूत, याहूत, हाहूत और हुवियत और मुकामे हा, जहाँ पर सिवाय हैरत के कुछ नहीं है, जिसको हम इसमें अल्लाह ज़ात अहदियत कहते हैं। इसके आगे मुकामे इसमें अल्लाह ज़ात से भी एक पीछे मुकाम है, याद रखिए। तो हजूर पाक ने इसमें अल्लाह ज़ात दिया, उससे पीछे जो मुकाम है उस पर अल्लाह ताला का इसम भी नहीं है, यानी उसको मुकाम हैरत कहा जाता है। वहाँ पर इसम और जिस्म दोनों की गुंजाइश नहीं होती, जिसको हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन ने इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं अलफ़ल्लाह जाददित्ती व खाली अज खुद हो या फ़ानी हूँ, ना उठे कुर्ब विसाल ना मंजल, ना ही जिस्म ना जानी हूँ, ना उठे कुफर इस्लाम ते ना ही इश्क मकानी हूँ, ऐनो ऐन थियोसी हजरत बाहू सिर्र वहदत सुबहानी हूँ। यानी कि हजरत बाहू जहाँ का तू शहबाज है वहाँ पर ये दुनिया के कोई रोले मौजूद नहीं हैं, वहाँ पर सिर्फ अल्लाह है या उसका महबूब है, उसी के नूर में गुम हो जाना है। ऐ लोगो अपने सीने इसमें मोहम्मद से मुनव्वर करो, अपने दिल इसमें अल्लाह ज़ात से मुनव्वर करो। अल्लाह की कसम ये दोनों वो असमा हैं जो मालिक ने ही अपने रखे हुए हैं और यही नाम पूरी कायनात को चला रहे हैं। मेरे भाइयों अपने आप को मुराकबा में रखें, अपने आप को मुशाहदे में रखें, अपने आप को तस्वरे इसमें अल्लाह ज़ात और तस्वरे इसमें मोहम्मद में रखें। अल्लाह की कसम ये दो असमा आपके इस नासूती वजूद को उठाएंगे और मालाकूती वजूद बनाकर आपको अल्लाह ताला की अहदियत का सिबगातुल्लाह का रंग चढ़ा देंगे और वहाँ पर जाकर पता चलेगा तिमुल फ़क्र फ़ाहु वल्लाह, जब फ़क्र तमाम हुआ तो उस पर अल्लाह का रंग चढ़ गया, गैर मौजूद ना रहा। मेरे भाइयों ज़िंदगियों को ज़ाया ना करें, फ़िरका परस्ती को छोड़ दें, किसी को बुरा भला कहने से बेहतर ये है अपने आप को सीधा करें। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता सुल्तान बाहू ने हमें बताया, हमारे मुर्शिदों ने हमें बताया। ऐसे मुर्शिद के बैत हो जाएं जो आपको सीधे रास्ते पर लगाता है और आपको सीने को इसमें मोहम्मद देता है, आपके दिल को इसमें अल्लाह ज़ात देता है और फिर आपको औलिया की मजलिस मोहम्मदी में पहुंचाता है और आपको मुशाहदा हक में फना करके बका हासिल करवाता है। मेरे भाइयों ये साईं महबूबे पीर की यही ड्यूटी है, लोगों के दिलों को इसमें ज़ात से मुनव्वर करने के तरीके बताता है। ये मेरे शेख ने हुक्म दिया, आज हज़ारों नहीं लाखों दुनिया हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे ये इसमें ज़ात का और इसमें मोहम्मद का पूछ रही है और हम उनको बता रहे हैं और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों ने बताया, हमारे कल्ब जिंदा हो गए, हमारे सीने रोशन हो गए, हमें हजूर पाक की पंजतन पाक की गौसे पाक की हाज़िरी ज़ियारत नसीब हुई। माशाअल्लाह बिल्कुल ये हक और सच है, होती है जब कोई कामल मुर्शिद नजर करे तो ये सारे काम अल्लाह ताला उस बंदे के सवार देता है। मेरे भाइयों आज से इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात जो अल्लाह कर रहा, अल्लाह हर वक्त कर रहा है या मोहम्मद या मोहम्मद, और मोहम्मद मुस्तफ़ा अर्श पे कर रहे हैं या अल्लाह। ये दोनों एक दूसरे हस्तियों के नाम पुकार। जब कोई बंदा इसमें मोहम्मद अपने सीने पर और इसमें अल्लाह अपने दिल पर नक्श करता है ना, अल्लाह और उसके रसूल का करम बंदे पे हो जाता है और अल्लाह इन दोनों शानों से बंदे की तरफ मुतजल्ला होता है और बंदे के ऊपर उसकी करम नवाजी करता है कि बंदे तू उसको इसम को पुकार रहा है जो मेरे यार का इसम है, इसमें मोहम्मद को सीने पर नक्श कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला रूहानियत में है। तो जब हम रूहानी तौर पर नक्श करते हैं तो रूहानियत में अल्लाह ताला फ़ौरन बाखबर होकर फरिश्तों को हुक्म देता है जिसके दिल की मुराद को पूरी की जाए। और जब कोई बंदा इसमें अल्लाह करता है तो रसूल पाक खुश हो जाते हैं, कहते मेरे अल्लाह का नाम दिल पर नक्श कर रहा है, मेरे उस मुकाम
अजली अबदी का जो कहले राज है इसमें अल्लाह ज़ात उसको कर रहा है, हजूर पाक भी खुश हो जाते हैं। अल्लाह ताला से अर्ज़ करते हैं मौला इस बंदे के दिल को कल्बे सलीम बना दे ताकि ये जन्नत में जाने के काबिल हो जाए। मेरे भाइयों, जिनके वजूद इसमें अल्लाह ज़ात के नूर से मामूर हो जाएं, अल्लाह की कसम उनके जिनके वजूद मुनव्वर हो जाएं, जिनके वजूद नूरुल्ला नूर हो जाएं, फिर उनको दुनिया की हाजत नहीं रहती। अल्लाह की कसम उनको फिरकों की जरूरत, वो किसी को बुरा भला नहीं कहते, वो किसी को गाली गलूच नहीं देते, वो अपने अल्लाह को राज़ी करने में लगे रहते हैं, अपने इसमें मोहम्मद को न और इसमें अल्लाह ज़ात को अपने ऊपर मेहरबान करने में लगे रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में सखी सुल्तान बाहू और हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी और मेरे मुर्शिद करीम हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रात का, आप मुर्शिदैन का जो फैज़, जो तरीक़ा, जो उनका इसमें ज़ात के देने का तरीका ये फ़कीर बयान कर रहा है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कोई ऐसे खुलकर बयान करता हो जैसे मैं बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, इससे कोई इल्म हासिल कर लें, फैज़ हासिल कर लें। ज़िंदगी मुख्तसर है, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में मेरे दोस्तों अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर चलें और इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।